Welcome again, everyone, for the next lecture. So, now in this lecture, we will be discussing on the formats of फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. ऐसा ही टोल्ड यू, हमें कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव है, क्रेडिट सोसाइटीज है. सो इसमें जो पहला वाला पार्ट है दैट इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उसमें हम क्या प्रिपेयर करते, वी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं. सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इज अ नॉमिनल अकाउंट. सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. सो एक्सपेंडिचर बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बट डेबिट साइड में यू विल राइट ऑल द एक्सपेंडिचर्स एंड क्रेडिट साइड में इट विल बी इनकम. So debit all expenses and losses, credit all income and gain following the nominal account rule. Expenditure will be in the debit side and income will be in the credit side. So how does it start? सबसे पहले प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस, सबसे पहले क्या रहेगा, प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस. ना प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस में क्या रहेगा, प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस में देयर विल बी प्रॉपर्टी टैक्सेस, वाटर टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. मतलब यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी. सो क्या सब प्रॉपर्टी जब खरीदते हैं तो क्या क्या टैक्स, प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्सपेंसेस रहेगा. ऑल द प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्सपेंसेस will come here in the expenditure. So it will be property taxes, water charges, electricity charges, repairs maintenance fund, expenses on lift, contribution to the sinking fund, parking charges, interest on defaulted charges, payment of loan installment interest, non occupancy charges, insurance charges, lease rent, non agricultural tax, any other charges. Because the land, see यहाँ पे non agricultural taxes है, this land where the building has been formed, it is not for agriculture purpose, क्योंकि agriculture purpose तो वहाँ पे construction, हाउस का कंस्ट्रक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी टेकन प्लेस बिकॉज दैट इज सोल्ड ना, कमर्शियल हो जाते हैं, फिर उसको बेच के फिर लोग रह रहे रेसिडेंशियल पर्पस. तो वो नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स, उसके लिए क्या टैक्सेस पे करना है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू non occupancy charges when nothing, when the house is not occupied, uska bhi the charges are there. So all everything is related to property, every all these are related to property. इसका तुम इनकम साइड देखोगे ना, दिस इज प्रॉपर्टी एक्सपेंस, दिस इज एक्सपेंडिचर. बट जब तुम लोग इनकम साइड देखोगे, so the collection from members, who are the members, members are the owners of the, members are the owners of the houses. And when you purchase the house in a cooperative society, you have to compulsorily become the member, you become the member of the cooperative society, and you have to purchase some percent per some number of some units of shares. So that आपको करना ही पड़ता है, and you are the member of the cooperative society. So collection from members, यहाँ पे भी आप देखोगे कि सेम है, प्रॉपर्टी टैक्सेस, वाटर टैक्सेस. मतलब खर्चा करने के लिए पैसे कहाँ से रहेगा सोसाइटी के पास, ऑल द मनी कम्स फ्रॉम द मेंबर्स. सो ये प्रॉपर्टी टैक्सेस पे करने के लिए किससे कलेक्शन करेंगे, मेंबर्स से, और उसमें से एक्सपेंसेस पे करेंगे. मीन्स बोथ थिंग्स आर ऑलमोस्ट सेम. प्रॉपर्टी टैक्सेस, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर चार्जेस यहाँ पे भी वाटर चार्ज, बट दिस अमाउंट मे नॉट बी द सेम, बिकॉज जितना कलेक्ट किया उतना पूरा पे किया जरूरी नहीं है ना. a higher amount may be collected and accordingly the amount may be paid. So collection from members, collection from members. So collection from property taxes, water charges, electricity charges, everything will remain the same. Now iske baad we have
एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस मतलब सोसाइटी को रन करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए, फंक्शन करने के लिए what all expenses are required. Now see here, there are salaries, office taxes expense, printing stationery, postage, conveyance, sitting fees, subscription to education fund, subscription to housing society, cooperative housing society, housing fund, cooperative society, and then entrance fee of housing cooperative housing fund or cooperative society, audit fees, meeting expenses, other fees, common electricity charges, see housekeeping, other charges, security, accounting charges. These all are related to the functioning of the society. Society को अगर function करना है smoothly, तो ये सारे charges लगेंगे, ये सारे चीज़ें खर्चे लगेंगे. सो दीज आर द एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस टू एस्टैब्लिश द सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, रन करने के लिए दीज चार्जेस आर रिक्वायर्ड. सम लाइक सैलरीज ऑफ द लिफ्टमैन, सैलरी ऑफ द सिक्योरिटी पर्सन, सो cleaner, salary of the cleaner, all these expenses has to be bared by the society. But uske liye from where the expense amount will come? उसके लिए अमाउंट विल कम फ्रॉम ईयर, कलेक्शन फ्रॉम मेंबर्स. मतलब इनकम साइड में हम जो भी खर्चा पे करेंगे उस सबका कलेक्शन वी विल हैव टू टेक फ्रॉम द मेंबर्स. ये सबका कलेक्शन हम कहाँ से करेंगे? ये सबका कलेक्शन हम मेंबर से ही करेंगे. सो कलेक्शन करने के लिए वी विल हियर, वी विल सेम जो यहाँ पे है, जो डेबिट साइड में है, सेम थिंग्स आर इन द क्रेडिट ऑल्सो. सैलरी मतलब कहाँ कलेक्शन किसके लिए करेंगे? मेंबर से. फॉर द सैलरी टू बी पेड, फॉर द ऑफिस टैक्सेस, expenses, printing, stationery, postage, everything will remain the same. If you will read, all everything is the same only. Then we have other expenses. Anything जो भी रह गया other expense में, what is there? Depreciation is there and provision for tax is there, which we will show under other expenses. तो how सबसे पहले property charges are there, property expenses are there. So property expenses में everything will come related to the property. And then we have establishment expense मतलब day to day working of the society. And उसके अलावा we have other expenses जहाँ पे anything other than the property and establishment कुछ भी रहेगा तो we will show under other expenses. So we have depreciation, provision for tax. उसके अलावा इधर क्या है? After the collection from member for society charges, for service charges, हमारे पास और क्या है? We have interest and dividend. Means if the company society has done some investments, तो उसमें हमें interest मिल सकता है, saving bank, fixed deposit. if shares कोई company का खरीदा है तो dividend. So these are all income. इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मीन्स इंटरेस्ट से कुछ इनकम आ रहा है, डिविडेंड से कुछ इनकम आ रहा है. So that will come under interest and dividend. And lastly, other income, transfer fees when the ownership is getting transferred from one person to another, transfer fees. And the tower is used for suppose for a function, for a, and it will be given exclusively to the cooperative society members. मतलब जो cooperative जो owners है वो building में, वो society में जो owners है उनको उनका छोटा सा birthday function करना है या छोटा सा कोई दूसरा function करना है, so the tower can be rented to them. तो उसका rent मिलेगा, that will be used, that will be a other income for the society. And then if there is lot of scrap accumulated in the society that will be sold out, that also will give some income, that will also generate some income to the society. That everything will come under other income. So got it? ये format में कोई problem है? Again we will just revise.
इन द डेबिट साइड इज एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड इज इनकम. इनकम में पहले इट इज प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस, जिसमें हम वी विल बी वी विल बी सीइंग ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी. And then we have जैसे property taxes, water charges, electricity charges. Then we have establishment expense, this will be day to day expenses. Then we have other expenses. पहले से हमने expenditure side देखते हैं. expenditure side में है, you all can remember this. और उसके अंदर जो मसाला है, देन जस्ट रीड 2-3 times और देन अंडरस्टैंड ये किससे रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है. ऐसे रीड करके अगर आपको रट्टोफाई करना है, यू वांट टू मेमोराइज, देन यू कैन डू दैट ऑल्सो. नहीं तो जस्ट बाय सीइंग ऑल्सो यू कैन रिमेंबर दिस. तो सबसे पहले इट इज प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस, सेकेंड इट इज एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस, third it is other expense. These are the these are the three main heads. Then the credit side, that is the income side, is also the same. बस यहाँ पे फर्क क्या है, गेटिंग मनी फ्रॉम द मेंबर्स, कलेक्शन फ्रॉम द मेंबर्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एक्सपेंस, दैट इज सोसाइटी चार्जेस. सेम ही चीज़ें हैं. कलेक्शन फॉर सर्विस चार्जेस, दैट इज एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस. सेम ही चीज़ें. सोसाइटी खुद से पैसा नहीं दे सकता, दे हैव टू कलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द मेंबर्स. देन इट बी एनी एक्सपेंस, द कलेक्शन विल बी फ्रॉम द मेंबर्स ओनली. उसके अलावा there is interest and dividend, that is income generated by the society. And then other income is there. So this in the expense side 3 heads are there, in the income side 4 heads are there. उसको भी याद कर लिया तो you will be able to understand the income and expenditure. Now we have the next format. After income and expenditure, we have the next format. So format of balance sheet. फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, अवर फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट अगेन ये हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कर रहे हैं. सी दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी अगेन बिकम्स इजियर चैप्टर बिकॉज यहाँ पे हम वर्टिकल फॉर्म में नहीं, दैट 11th स्टैंडर्ड का, दैट 11th स्टैंडर्ड से जो तुम लोग को आदत था हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करने का, बट TY से that habit has gone because TY से you were doing the balance sheet in majority topics it was in vertical form. So now here in the balance sheet format is in horizontal form, T format. So liability, asset. And यहाँ पे भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी, what we will be doing is we will be remembering, we will be memorizing the heads. हेड्स याद रखना है. और अगर कोई हेड का कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया ना, तो हम वो हेड को लिख के नील लिख सकते हैं, या तो वो हेड को इग्नोर भी कर सकते हैं. ये 2 ऑप्शन है. वो मैं ये चीज मैं आपको बाद में बताती हूँ. नाउ लेट अस फर्स्ट सी द फॉर्मेट. सबसे पहला हेड इन द लाइबिलिटी, फर्स्ट लेट अस गो टू द लाइबिलिटी साइड. लेट अस गो टू द लाइबिलिटी साइड. लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले वी हैव शेयर कैपिटल. लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले वी हैव शेयर कैपिटल. सो शेयर कैपिटल में what will come, the shares of the cooperative societies will come, authorized, उसके बाद that is the limit, then subscribed जितना परचेस हुआ है, एंड देन अगर कुछ कॉल्स इन एरियर है तो लेस करना है. कॉल्स इन एडवांस है, किसी ने एडवांस में कॉल का पैसा दे दिया है तो दैट वी हैव टू ऐड. सो दैट इज देयर. देन सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स शेयर्स दिया हुआ है. Normally directly they will give the share capital that we have to write in the share capital. Then we have the second head, which is reserve fund and other funds. There we have statutory reserve fund, wherein I have told you 25% of the current year profit is transferred to the statutory reserve fund. But condition क्या है, the appropriation, the transfer has to be sanctioned from the general body. उसके बाद ही हम ये इफेक्ट इधर दे सकते हैं, नहीं तो द इफेक्ट कैन नॉट बी गिवन. जब तक
एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में वो जनरल बॉडी सैंक्शन नहीं करता द अप्रोप्रिएशन, दैट कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड हियर, हम उसका इफेक्ट इधर शो नहीं कर सकते। नेक्स्ट देर इज ओपनिंग में एंट्रेंस फी है, ट्रांसफर फी है, प्रीमियम ऑन ट्रांसफर, इंटरेस्ट ऑन फंड एफडी। सो यहाँ पे सी ऑल द ट्रांसफर वॉट एवर इज, हम यहाँ पे रिजर्व फंड में कुछ भी ऐड कर रहे हैं, कुछ भी कैपिटलाइज कर रहे हैं, तो विल कम हियर। सिंकिंग फंड इज इन्वेस्ट, यहाँ से हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। So sinking fund is again a reserve. So sinking fund में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, so sinking fund is nothing, but sinking fund में जो भी like you all must have done redemption of debenture, वहाँ पे you must have come across this sinking fund. This is a fund which is maintained, जहाँ पे हम side by side इसका investment भी करते. When sinking fund is there in the reserve, sinking fund investment will be there in the asset. When sinking fund is there in the liability, sinking fund investment will be there in the asset side. With simultaneously यहाँ पे हम जमा कर रहे हैं पैसा from the surplus और बाजू में हम invest कर रहे हैं in the asset side. So that both things will be there addition to sinking fund, and जो भी interest मिल रहा है from the investment, वो interest को भी हम fund में add कर देते हैं. देन वी हैव रिपेयर्स फंड, अगर बिल्डिंग का रिपेयर्स करना है, सोसाइटी में रिपेयर्स करना है, तो वो सब के लिए दैट फंड हैज़ टू बी क्रिएटेड एडिशन, एंड एवरी टाइम मेंबर से ले सकते फॉर द रिपेयर्स फंड में कितना एडिशन हो रहा है, वो पैसे को भी इन्वेस्ट किया है तो उसमें से भी कितना इंटरेस्ट, वो पैसे को सी रिपेयर्स के लिए जो पैसा जब मेंबर से मिला है, दैट व्हाट वी विल बी डूइंग, दैट वी विल बी कीपिंग ऐसा एफडी, वी विल बी, हम एफडी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा रिस्क तो सोसाइटी कैन नॉट टेक अ बिग रिस्क, सो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दे विल नॉट डू, दे विल गो फॉर ऑल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स. The society, the cooperative society may normally go for a risk free investment. तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है? एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, जहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट किधर भी नहीं जाएगा, जस्ट यू विल बी गेटिंग लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्ट. नहीं नहीं करके अगर कंपनी जैसे शेयर्स डिबेंचर्स में जाना बहुत रेयर है, it will be like taking a big risk for them. They may not very easily go for that kind of investments. They may always go for the investments which are very less risky, which are least risky, normally which are risk free. तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के लिए ज़्यादा जाना चाहेगी सोसाइटी जो रिस्क फ्री है, क्योंकि देयर मनी, जो भी पैसा यहाँ पे है, दे आर आंसरेबल टू द ओनर्स ऑफ द हाउसेस, दे आर आंसरेबल टू द मेंबर्स. तो अगर कुछ भी पैसा कम हो गया, देन दे हैव टू आंसर टू द members who are the owners of the houses. So normally the investment will be maximum risk free. एंड अदर फंड्स, तो कोई भी दूसरा फंड है तो उसका ओपनिंग एडिशन कितना हुआ है ईयर में, इंटरेस्ट कितना, एफडी से एवरीवेयर दे हैव गिवन एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट. नॉर्मली दे विल गो फॉर अ एफडी, दे विल गो फॉर अ फिक्स्ड डिपॉजिट एज अ एवेन्यू फॉर इन्वेस्टमेंट other than investing in shares होगा तो भी they will go for government securities, because government securities are also risk free. Normally the government securities also are considered to be risk free, so they will go for other anything other than FD, it should be government securities. So members contribution to building, so that has to be ना, बिल्डिंग फंड में कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा मेंबर्स को, ताकि फ्यूचर में दे वांट कि दे मे बी दे वांट टू सेलिब्रेट एनी फेस्टिवल, सो उसके लिए तो इमीडिएट कलेक्शन भी हो सकता है. बट इफ देयर इज अ दे ऑल, it's a compulsory, like suppose any festival which they do it every year, they may create a fund for it, and वो fund से they may utilize the money every year. लेकिन उसके लिए they also they have to do, the members have to do a contribution for that fund.
staff provident fund for the staff, the cleaners, the liftmen, the security. So secured loans, now if the society has gone for a secured loan, तो वो secured loan क्या हो सकता है? Debentures, loan, overdraft, cash, credit from bank, loan from government, any other secured loan. तो unsecured loan होगा तो भी same है, loan from loan, cash, credit, but the difference is above one is secured one which is taken against some security, the next one is unsecured which is not taken against any security. देन सी सॉरी, हम लोग को ना यहाँ पे मैं एक चीज भूल गई, हमें हेड्स ध्यान में रखना है. पहला वाला हेड क्या है? शेयर कैपिटल. सेकेंड वाला हेड क्या है? रिजर्व फंड एंड अदर फंड. उसके अंदर का मसाला में चेंज, मतलब हमें ध्यान में रखना है किसको कहाँ पे लिखना है करके. बट हेड्स वी हैव टू रिमेंबर. Staff Provident Fund is the third one. Then secured loan is the fourth one. Then unsecured loan is the fifth one. Then we have deposits. डिपॉजिट्स में क्या क्या डिपॉजिट है सिक्योरिटी अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास? द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन see these are liabilities, means take a fixed deposit, can take a recurring deposit from its members. So इनके पास क्या हो सकता है? Here we have to think, see from the point of view of a cooperative society. So deposits में क्या हो सकते हैं? सोसाइटी ने क्या लिया है? एफडी लिया है, रिकरिंग डिपॉजिट लिया है, थ्रेफ्ट और सेविंग डिपॉजिट. थ्रेफ्ट हो जाए तो सी सेविंग डिपॉजिट, current deposit, deposit at call, other deposit, see credit balance in cash credit, overdraft or and overdraft account, security deposit from members, electricity and water deposit. So these are the different deposits which are maintained by the deposit, maintained by the cooperative society for different purposes. For different purposes के लिए जो cooperative society ने डिपॉजिट्स क्रिएट करके रखा है, दोस आर द डिपॉजिट. कोई भी डिपॉजिट होगा तो हम ये डिपॉजिट में लिख देंगे. अगर आई एम सॉरी, if any kind of deposit is there, then we will be doing what? We will be writing in the head deposits. We will be writing in the head deposits. Then we have current liability and provisions. So यहाँ पे क्या current liability हो सकता है? Outstanding creditors for any purchases done by the society, outstanding creditors for any expenses met by the society. Creditors मतलब क्या? उधार लिया है, अब उधार में खरीदा होगा, कुछ परचेसेस किया होगा, कुछ खर्चे हैं जिसका पैसे नहीं दिया होगा. So it may be outstanding creditor for purchases, it may be outstanding creditors for expenses, it may be advances taken from members जिनको बाद में हमें वापस करना है. हमने मेंबर से एडवांस लिया है, हमने इनकम एडवांस में लिया है. प्रॉपर्टी टैक्स रिफंड वी हैव टू पे टू मेंबर्स, उनका टैक्स का रिफंड आया विच वी हैव टू पे टू द मेंबर्स. सो दीज आर ऑल द करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजंस. सो हमारे पास क्या क्या हेड्स है? हमारे पास सबसे पहले शेयर कैपिटल है. We have to remember, see I'm again and again telling you, we have to remember this heads when we are doing this chapter. We have to remember share capital, reserve fund. अगर वो हेड में कुछ भी नहीं है ना तो उसको इग्नोर कर सकते हैं while solving the sum, नहीं तो वो लिख के उसके आगे नील लिख सकते हैं. रिजर्व फंड, स्टाफ प्रोविडेंट फंड, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, डिपॉजिट, करंट लाइबिलिटी प्रोविजन, फिर अनपेड डिविडेंड होगा, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट पेड, मतलब इंटरेस्ट is outstanding but we have not paid yet. So we'll come here, interest accrued, outstanding interest रहेगा तो इधर अलग से हेड में लिख सकते हैं. एंड अदर लाइबिलिटीज लास्ट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सी
इनकम एंड एक्सपेंस नॉर्मली हम रिजर्व फंड में नहीं लिखेंगे। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, जो भी सरप्लस या डेफिसिट होगा, सर सरप्लस होता है तो यहाँ लिखना है, डेफिसिट होगा तो हमें असेट साइड में लिखना पड़ता है। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सरप्लस फॉर लास्ट ईयर लेस अप्रोप्रिएशन, बट अप्रोप्रिएशन अगर जनरल बॉडी में सैंक्शन नहीं हुआ तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। बट अगर अप्रोप्रिएशन जनरल बॉडी में सैंक्शन हो चुका है, दैट प्रॉफिट में से अप्रोप्रिएशन लेस करना पड़ेगा। एंड करंट ईयर का सरप्लस या डेफिसिट, करंट ईयर का सरप्लस या डेफिसिट, गॉट इट। लास्ट में अदर लाइबिलिटी के बाद वी हैव इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लास्ट ईयर का जो भी बैलेंस होगा, जो भी सरप्लस होगा, करंट ईयर का अप्रोप्रिएशन वी विल लेस। बट दिस अप्रोप्रिएशन हम तभी लेस करेंगे जब जनरल बॉडी ने अप्रोप्रिएशन को सैंक्शन किया हो, नहीं तो अप्रोप्रिएशन को लेस हम नहीं कर सकते। हम सिर्फ करंट ईयर का जो भी सरप्लस या डेफिसिट होगा वो यहाँ पे, नॉर्मली यहाँ पे सिर्फ सरप्लस आता है, बिकॉज अगर डेफिसिट होता है तो हम असेट साइड में दिखाते हैं। So these are the heads under liability side. Now we will go to the heads under asset side. So यहाँ पे भी if you will see the cooperative societies asset side starts with the cash and bank balance. So normally companies का हम fixed asset से start करते हैं, but cooperative society also performs on liquidity basis. तो यहाँ का भी सबसे पहले कौन सा बैलेंस आ रहा है, देखो कैश एंड बैंक बैलेंस। तो सबसे पहले हेड है कैश एंड बैंक बैलेंस, उसमें हम सारे कैश लिख, हैंड में हो, बैंक में हो, करंट अकाउंट में हो, सेविंग में हो, कॉल डिपॉजिट ऑन बैंक, all the cash and bank balances of the society will come here. सोसाइटी का जितना भी कैश एंड बैंक बैलेंसेस विल कम हियर। सेकेंड आफ्टर कैश बैंक नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। सोसाइटी ने कहाँ पे इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया है, ट्रस्टी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया है, नॉन ट्रस्टी सिक्योर ट्रस्ट का, बिकॉज दोस आर ऑल्सो लिटिल बिट रिस्क फ्री, सो उसमें इन्वेस्ट किया हो। शेयर्स ऑफ अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, शेयर ऑफ महाराष्ट्र डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी, MDH फेडरेशन, shares, debentures or bonds of companies, fixed deposit। सी शेयर्स डिबेंचर्स ये सब बाद में लिखा है। this depends if the society is ready to take so much of risk. See all the investment, कोई भी investment रहने दो, it will come here, it be FD, it be fixed deposit sinking fund, fixed deposit repair fund, fixed deposit major repairs fund। मतलब sinking fund में जो पैसा है वो FD में डाला, repair fund में जो पैसा है वो FD में डाला, मेजर रिपेयर फंड में जो पैसा है वो एफडी में डाला। मीन्स उससे इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो इंटरेस्ट बाद में अगेन विल बी एडेड टू दैट फंड। मीन्स जो भी फंड है हमारे पास, अगर हमारे पास सिंकिंग फंड है उसको हमने इन्वेस्ट किया तो इट इज सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इन एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। रिपेयर फंड में जो पैसा है उसको हमने इन्वेस्ट किया एफडी में, तो दैट इज एफडी। उसका भी जो इंटरेस्ट आएगा, सी हियर ऐड इंटरेस्ट, रिपेयर फंड का जो इंटरेस्ट है एफडी में वो ऐड किया है। एंड अगर हम कुछ रिपेयर करेंगे तो लेस एक्सपेंसेस। So this will come under the second head investment. First head is cash and bank balance, second head is investment, थर्ड हेड क्या है, स्टाफ प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे स्टाफ प्रोविडेंट फंड है, यहाँ पे उसका इन्वेस्टमेंट है, उसको भी हम, वो फंड को भी हम इन्वेस्ट करेंगे। फिर लोन्स एंड एडवांसेस है, उसमें लोन्स है, लोन फैसिलिटी गिवन, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी गिवन टू द मेंबर्स, कैश क्रेडिट फैसिलिटी गिवन टू द मेंबर्स, स्टाफ एडवांसेस, स्टाफ को एडवांस दिया, प्रीपेड एडवांसेस, आई एम सॉरी अगेन, प्रीपेड एडवांसेस। सो लोन्स एंड एडवांसेस में क्या लिखना है, लोन्स एंड एडवांसेस में क्या लिखना है, लोन्स एंड एडवांसेस में वी विल राइट लोन्स, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कैश क्रेडिट फैसिलिटी, स्टाफ एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस। देन वी हैव डेटर्स। हु आर द डेटर्स, डेटर्स आर द कस्टमर्स ऑफ द
सोसाइटी। तो यहाँ पे क्या है, देखो इसके डेटर में क्या है, क्रेडिट सेल है, स्टाफ को एडवांस दिया, बिल्डर से पैसा मिलने वाला है, ड्यू टू मेंबर्स। नॉर्मली इन द डेटर्स इट विल बी द मेंबर्स ओनली। सो यहाँ पे मेंबर से कुछ पैसा मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव। प्रोविड प्रॉपर्टी टैक्स रिफंड ड्यू फ्रॉम बीएमसी, बीएमसी से कुछ पैसा मिलने वाला है, विल ऑल कम हियर। एंड देन वी हैव करंट असेट्स। सी डेटर्स अलग से लिखते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस अलग से लिखते हैं। पहले हमने लिखा कैश एंड बैंक बैलेंस, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर स्टाफ प्रोविडेंट फंड, फिर लोन्स एंड एडवांसेस, फिर डेटर्स, फिर करंट असेट। करंट असेट में क्या है, देयर इज स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स, स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस। देन वी हैव द फिक्स असेट। करंट असेट के बाद फिक्स असेट है। फिक्स असेट में द लैंड एंड बिल्डिंग, लीज होल्ड, रेलवे साइडिंग्स, प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट। उसका अगर डेप्रीसिएशन है तो लेस करेंगे। वाटर पंप विच इज़ यूज इन द सोसाइटी, उसका डेप्रीसिएशन है। फॉर सप्लाइंग वाटर, अगर बोरवेल है, depreciation on borewell, furniture fitting, depreciation on furniture. See, depreciation भी simultaneously less किया हुआ है. If there is any dead stock, livestock, vehicles, anything is there will come here. Society का, which is owned by the society, all the assets above should be owned by the society. So इसके बाद there is miscellaneous expenses and losses. उसमें what is there, goodwill is there, preliminary expenses is there, expenses on issue of shares and debentures, deferred revenue expenditure, building renovation expenditure. These are building renovation all are big expenses. तो ये expenses को हम expenditure side में नहीं दिखा सकते हैं, तो हम उसको यहाँ पे asset side में दिखा देते हैं as miscellaneous expenditure and losses. उसके बाद what else do we have? We have other expenses, sorry, we have other items. Other items में it is interest accrued but not interest, outstanding income है, outstanding interest, electricity deposit, water deposit, अगर asset side में है इधर आएगा. These are all the deposits which are there with the society. And then second last one, income and expenditure account, accumulated losses not written off. अगर deficit है, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेफिसिट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सरप्लस है तो लाइबिलिटी साइड में, डेफिसिट है तो यहाँ पे लिखेंगे, और एनी करंट लॉसेस. सो दीज आर द हेड्स. अभी आई वंस अगेन वी विल गो अप एंड सी द हेड्स ओनली इन द असेट साइड. कैश बैंक बैलेंस एक हो गया, इन्वेस्टमेंट टू, स्टाफ प्रोविडेंट फंड, लोन्स एंड एडवांसेस, डेटर्स, करंट असेट, फिक्स असेट, मिसलेनियस एक्सपेंस एंड लॉसेस, अदर आइटम्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, करंट लॉसेस. सी इट इज नॉट डिफिकल्ट, आपको सिर्फ ये हेड्स को याद रखना है. अंदर का जस्ट रीड इट आउट 2-3 टाइम्स. अगर कभी एक का दूसरे में हो गया तो भी नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम. बट सिर्फ लाइबिलिटी का असेट में, असेट का लाइबिलिटी में मत करना, नहीं तो इट विल बी अ प्रॉब्लम. बट असेट का ही तुमने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी एक, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस लोन्स एंड एडवांसेस में ही लिखते हैं नॉर्मली, तो मतलब ऐसे थोड़ा बहुत गलती से ऊपर नीचे हो गया, बट ट्राई नॉट टू डू दैट. हो गया तो भी ठीक है, बट ट्राई जस्ट रीड आउट 2-3 टाइम्स एंड देखो. इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट में ही लिखना है, कैश बैंक बैलेंस है तो उधर ही लिखना है, स्टाफ प्रोविडेंट फंड उधर ही, लोन्स एंड एडवांसेस मीन्स इन द लोन्स एंड एडवांसेस ओनली. सो दैट वे थोड़ा करंट असेट का मैंने सपोज डेटर में लिख दिया, डेटर का करंट असेट में, लोन्स एंड एडवांसेस का करंट असेट में, ठीक है वो चलता, बिकॉज करंट असेट एक्चुअली इज अ पार्ट ऑफ लोन्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस एंड डेटर्स आर अ पार्ट ऑफ करंट असेट ओनली. बट हियर इन दिस चैप्टर दे आर शोन सेपरेटली. लोन्स एंड एडवांसेस को अलग से दिखा दिया, डेटर्स को अलग से दिखा दिया, करंट असेट को अलग से दिखा दिया. फिक्स असेट
miscellaneous expenses and losses, other items, income and expenditure account, current losses are the heads. ये तुम लोग को I will be giving uh, this one in your group. See here, this is the format. With this, the format explanation is done. In the next lecture, we will be starting with the sums. See, one more thing, memorandum of appropriation. Format of memorandum appropriation account. इसका format भी एक बार देख लो. Statutory reserve में 25% of the profit जाएगा. फिर अगर कोई और फंड ट्रांसफर रहेगा तो दैट वी विल डू. यहाँ पे क्या है, बाई बैलेंस बॉट डाउन, दिस इज द लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, दिस इज द करंट ईयर सरप्लस जो कि हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से मिलेगा. इसको बंद करके यहाँ पे इसका सरप्लस का 25% निकालेंगे तो स्टैट्यूटरी रिजर्व का ट्रांसफर मिल जाएगा. कोई एनी अदर ट्रांसफर इज गिवन इन द क्वेश्चन तो वो भी ट्रांसफर करेंगे. इस अकाउंट को बंद करेंगे तो ये बैलेंस मिलेगा. दिस इज द बैलेंस ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट. So this is memorandum का memorandum appropriation account.